So hello everyone, you are welcome to Wireless Era and obviously आपने thumbnail देखा होगा. This video is totally dedicated for placement talk. So इससे पहले हमने दो वीडियो already I have uploaded on placement talk. One is from IIT Lucknow, how to get place in NPCL means Core Electrical Company, and one is from HBTU, how to get place in Maruti Suzuki. So I mean this kind of video is really helpful who are in second year or third year of their engineering because ये जो भी videos मैं series upload कर रहा हूँ it's from final year of means your seniors and उनके जो भी real strategy होते हैं we are going to cover in videos. So ये video जो है totally dedicated for how to get in Reliance industry. So we have a very special guest, Risika Misra from HBTU Kanpur, and कि जितने भी वीडियोस हैं प्लेसमेंट तक आई विल ट्राई टू कवर इन फोर पार्ट. फर्स्ट हम उनके मींस कॉलेज लाइफ जर्नी के बारे में जानते हैं, देन सेकंड इज इंटर्नशिप एंड स्किल, एंड थर्ड वन इज लाइक सबसे इंपॉर्टेंट हम प्लेसमेंट के बारे में पूरा मींस गो थ्रू करते हैं, एंड फाइनली एडवाइस फॉर जूनियर्स. So let's begin this video. So hi Risika, please introduce yourself. Hi Neeraj. Okay, so Rishika, I'm Rishika Mishra. I'm in my final year pursuing BTech in Civil Engineering from Harcourt Butler Technical University. So Risika, please introduce means your college life journey. How means final means how is your college life journey from first year to till now? Okay, so basically college life is very good. Bit of roller coaster, but ये होता है ना कि you have your whole personality development in your college life. So initially when I entered in my college, so yeah, I was bit introvert initially, so I need to explore everything. So I went for every audition, for every club and all. So yeah, I explored very much in my first year, and I do have interacted with my seniors. My seniors are very helpful. So they basically suggested me how to survive, how to have a cordial relationship with your colleagues and with clubs and all. So it is bit very exciting. First year is like very good if I see my curricular wise, and second year is also bit exploring different stuff. My I was very good in astrology, so I used to see astrology like charts. For my seniors and colleagues, they suggested me and motivated to join AstroTalk. So yeah, I also start earning in my second year itself. So yeah, it is like very motivating, very I have my personality development in my college itself. And during my third and final year, I was more inclined towards my studies rather than the all these activities. So yeah, it is from exploring every new domain to getting sincere towards your career. So yeah, it is like a long journey. वेरी नाइस जर्नी यू हैव. सो ऑब्वियसली जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं होपफुली वो जूनियर्स होंगे, तो यू कैन गेट आइडिया फ्रॉम योर जूनियर्स आल्सो कि नॉट नीड टू हैक्टिक फ्रॉम फर्स्ट ईयर ओनली कि सेकंड ईयर से मुझे ये करना है, मुझे वो करना है. फर्स्ट ईयर इज जस्ट ऑल अबाउट योर एक्सप्लोरिंग द थिंग. जितना चीजों के आप मतलब एक्सप्लोर करोगे, जितना मतलब डीपली किसी चीज को जानोगे, देन आफ्टर यू गॉट टू नो कि यस वेयर यू हैव इंटरेस्ट. सो लाइक दैट यू हैव टू जस्ट very chill and you have to enjoy your first year and second year of your life. So yeah, now Risika, how you are feeling? Have you got placed in Reliance industry? So देखो बेसिकली ऐसा होता है कि सिविल इंजीनियरिंग में प्लेसमेंट्स तो कम लगते हैं, सो जिसके लग जाते हैं इट्स रियली लकी. सो हाउ यू आर फीलिंग नाउ एज अ रेपुटेड ऑर्गेनाइजेशन Reliance is? Yeah, very relieved. I was very relieved right now. जो Exactly. burden था वो अब कम हो गया है. एग्जैक्टली या जब तक हमारा प्लेसमेंट्स या मतलब हम अपने लाइफ में लाइक सेटल नहीं होते हैं तो थोड़ा वो होता है कि हाँ क्या होगा, मीन्स देयर इज नो आइडिया अबाउट कि व्हाट इज अबाउट टू हैपन. All right, so now we are coming on a second part, like skill and internship. So as I see from LinkedIn, Risika, you have did your means you have idea about language means CS background. You learn something like language also, and you are the general secretary of your means association of civil engineering. मीन्स यू हैव लिटिल बिट मीन्स एक्सप्लोरिंग एज यू से कि मतलब फर्स्ट ईयर में हमने एक्सप्लोर भी किया था. तो फ्रॉम दिस आई वांट टू नो कि हाउ द स्किल एंड इंटर्नशिप प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन आवर मीन्स रेज्यूमे बिल्डिंग और मीन्स आवर मीन्स इंटरव्यू टाइम. Yeah, internship plays a very important role. Even in my interview, my interviewer asked me like approx 3-4 questions related to my internship. So internship is we do have a theoretical knowledge from our textbook, but we don't have that much practical knowledge. And in civil engineering, we all need to have a practical knowledge. एंड वो होता है ना कि इतना टफ टफ फॉर्मूलेज हम देख रहे हैं टेक्स्ट बुक में, पर उसका इम्प्लीमेंट
इम्प्लीमेंटेशन हम इतना स्ट्रक्चर का हर एक चीज का हम वो देख रहे हैं फॉर्मूला कि बैंडिंग मूवमेंट ये हो रहा है, एसएफडी यहाँ ऐसे हो रहा है, बट रियल लाइफ में हम कैसे उसको एक्सप्लोर करेंगे, कैसे हमें पता चलेगा? या सो इंटर्नशिप में वो हमें ओवरव्यू देते कि अच्छा दिस इज अ रियल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रक्चरल एनालिसिस, कि हम इतना टफ टफ जो पढ़ते हुए आ रहे हैं, so this is how applied in a real life. So it is very important for like a personal learning. And if we see through our interview aspect, so yeah, it is a very important part for a placement, because interviewer आपके internship से क्वेश्चन पूछता है. सो इट इज लाइक कि आप अपना इंटर्नशिप अच्छे से करो, जिससे कि आप इंटरव्यू में अच्छे से आंसर कर पाओ और आपको उस चीज की अच्छे से नॉलेज हो. Exactly. So those who are means looking this video, obviously आप यहाँ से point out कर लो कि आपका internship and your skills matters a lot than how the knowledge in your domain. Means अगर आप कंपनी में काम करने जाओगे तो आप मतलब कितना knowledgeable हो ये important नहीं होता, आपके पास कितना skill है, आप कितना means deeply you are knowing Exactly. the exactly. So yeah, now I'm coming to the third means part that is very important on placement talk. So yeah, first of all, as you say कि you are too much serious from third year or fourth year final year means placements के बारे में इससे पहले आपने college life को बहुत ही अच्छे से explore किया. So now first of all, I would like to know कि your this Reliance is from on campus placements you got or off campus? So it is off campus. Okay, off campus. So yeah, in SB2 there is so many company coming from core branches also. So this is off campus. So ये वीडियो आपके लिए और इम्पोर्टेंट होने वाला है because so many student from राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज और यूनिवर्सिटी वहाँ मतलब companies is not approaching. तो ऐसा नहीं है. If you try your best, then you can get a good package of placements from off campus also. So please, Risika, tell me very clear cut means in very brief every process like starting से कैसे मतलब freelance industry में कोई अगर means place होना चाहे तो क्या process होता है? Please. ओके, सो आई वांट टू हाईलाइट वन फैक्ट. देखो, ऑन कैंपस जब कंपनी आती है तो वहाँ पे लिमिटेड कंपटीशन होता है, क्योंकि आपका बैच सिर्फ 70 या 80 बच्चों का होगा. सो Exactly. यू हैव दैट मच कॉम्पिटिशन. उसमें भी वहाँ पे आपको बैरियर लगा दिया जाता है कि आधी से ज्यादा कंपनी आपको 7 सीजीपीए से कम में बैठने ही नहीं देती है. तो फर्स्टली यू हैव टू मेंटेन योर सीजीपीए एनी हाउ इरिस्पेक्टिव ऑफ योर ब्रांच. ठीक है. एंड जब आप ऑफ कैंपस अप्लाई करते हो, इट इज ऑल ओवर इंडिया, पीपल आर अप्लाइंग फॉर दैट पर्टिकुलर position. So it's become quite like difficult, because हमारे यहाँ से भी there are so many people apply for Reliance, but very few got selected. So yeah, वहाँ पे competition comparatively tough हो जाता है, because वहाँ पे options उन लोगों के पास बहुत ज्यादा होते हैं. चलो इस कॉलेज से इतने बच्चे ले लेते हैं, उस कॉलेज से उतना ले लेते हैं. So firstly अगर आप फोकस करना चाहते हो तो वो ऑन कैंपस प्लेसमेंट पे करो, क्योंकि इट इज अ इजी ग्रेड. एंड अगर अपॉर्चुनिटी नहीं है तब आप ऑफ कैंपस जरूर अप्लाई कर सकते हो. इट इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी. So now I come to the process. So initially, ours is your resume shortlisting. After resume shortlisting, people get shortlisted for your assessment. Assessment is very tough for Reliance, especially because it does have a very high proctoring. Okay, अगर आपने कुछ भी थोड़ा भी इनकन्वेंशनल किया तो आपका तुरंत प्रॉक्टर कॉल आ जाएगा वहां से. After that, you have an interview, and मेरा इंटरव्यू गुड़गांव जाके हुआ. So yeah, this is the process. All right. So first of all, मैं भी बताना चाहूँगा it's off campus. So I also got to know about Reliance. So Reliance की मतलब ये open to all for every final year students. तो बहुत ही अच्छा opportunity होगा. This video is really helpful because she got placed. So she is giving a very genuine information and honest information. So if I talk about me, मैंने भी apply किया था. And ऐसा क्या होता है like अगर आप apply करते हो तो first resume shortlist and then after you have to go through the means assessment. Assessment पे ये होता है कि आपको पहले लैपटॉप में आपका कैमरा ओपन ही रहेगा. आपको एक मोबाइल का कैमरा भी सामने रखना होता है और उसमें थोड़ा सा भी आप इधर उधर होते हैं तो आपका सबमिट हो जाता है. और दिस इज द केस हैपन विद मी. मेरे साथ ऐसे ही हुआ था. मैं जैसे ही अभी एग्जाम दे रहा था, अभी 20 से 25 क्वेश्चन क्या होगा, ऑटोमेटिकली मेरा पेपर सबमिट हो गया एंड आई वाज टोटली मींस रेस्टलेस कि मेरा क्या हो गया. और उसके बाद मेरा ओपन ही नहीं हुआ. तो नाउ यू हैव टू टेक केयर ऑफ मींस कि यू हैव टू जस्ट बहुत ही सीरियस होकर आपको एग्जाम देना है. यू नॉट नीड टू टेक केयर मींस टेक हेल्प ऑफ योर फ्रेंड. ऐसा अगर करोगे तो लाइक एआई एंड सो मेनी मींस फीचर्स लेस होता है योर असेसमेंट्स. मतलब वो असेसमेंट आपको घर से ही देना होता है, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा मतलब एडवांस्ड होता है. तो प्लीज टेक केयर, क्योंकि वहां से ही आपका एक नेक्स्ट स्टेप इंटरव्यू का ओपन होता है. I would like to one point is that कि assessment में like you be very careful कि बहुत ज़्यादा कि आपका ऐसा कि कुछ भी डिटेक्ट ना हो जाए, क्योंकि it's like कि very tough and the very like majority companies do not have such like proctoral calls जितना Reliance में होता है. and इसका बहुत ज़्यादा जो efficiency होती है it is very high. तो ये कुछ भी जो other activity होती है बहुत जल्दी डिटेक्ट करती है, और बाकी कंपनीज में इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है कंपैरेटिवली जितना Reliance के ऐप में होता है. तो या जब भी आप एप्टी दो तो मेक श्योर कि आपके जितने भी कॉल्स आए
कि वो फर्स्टली वो तो कॉल्स आए ही ना, टोटल कॉल्स अगर आए तो वो एक दो से ज्यादा ना आए, क्योंकि फिर वो ऑटो सबमिशन, जैसे कि नीरज मेंशन, तो वहाँ पे ऑटो सबमिशन हो जाता है। सो दिस इज द थिंग यू नीड टू लाइक टेक केयर। या सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताना चाहूँगा इसका जो एप्लीकेशन जो आता है लाइक इट्स कम फ्रॉम अनस्टॉप। तो अनस्टॉप एक साइट है, वहाँ जाके आप पहले मतलब अपने आप को इनरोल कर लेना एंड टाइम टू टाइम विजिट करते रहना। वहाँ पे और भी कंपनीज का मतलब जेन्युइन कंपनी का ऑफ कैंपस प्लेसमेंट्स आता है, तो वहाँ से आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो नाउ आफ्टर कृतिका, आई वांट टू नो कि आफ्टर योर असेसमेंट ऑब्वियसली यू गेट मेल फ्रॉम रिलायंस, तो उसके बाद आप ऐसे टेल कि यू हैव इंटरव्यू एट गुड़गांव, तो प्लीज शेयर योर इंटरव्यू एक्सपीरियंस। So yeah, okay, for interview experience is very good, and I was heard like Reliance used to ask a mediocre question, but for me they asked me a good question, not a set of mediocre questions. So yeah, मतलब जो इंटरव्यू होता है, it is not same for all. So you need to prepare for a worst case scenario, and these are the 5 subjects you need to like have a hands on and theoretical knowledge. Okay, कि आपसे इन 5 सब्जेक्ट से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, that is जियोटेक, बीएमसी, आरसीसी, स्कीम एंड स्ट्रक्चरल। सो ये है स्ट्रक्चरल से आपको एसएफडी बीएमडी पूछा जाएगा। मुझसे पर्सनली 2 क्वेश्चंस उन्होंने सामने ड्रॉ कराए थे, एंड मुझे वही पहले मैंने लाइक हमारे यहाँ से तो वी आर द फर्स्ट बैच जो रिलायंस में सिविल से गया है। सो वी डोंट हैव दैट मच लाइक कि हमें कोई पर्सनली इतना बताए कि क्या क्या पूछा जाता है। बट हाँ, जितना भी मैंने ओवरऑल सुना था, दे ओनली यूज्ड टू से कि नहीं नहीं बहुत मीडियोकर क्वेश्चंस दे यूज्ड टू आस्क। नो, फॉर मी वो मेरा इंटर्नशिप में डिटेल में गए थे, वो मुझसे प्रॉपर एक एक चीज की वैल्यू पूछा उन्होंने। मेरे प्रोजेक्ट्स में वो किसी भी चीज के डायमेंशंस पूछ रहे थे, मतलब दे आस्क्ड मी अ पर्टिकुलर डायमेंशन ऑफ पर्टिकुलर थिंग। तो या यू नेवर नो ना कि इंटरव्यूअर का माइंड कैसा है उस टाइम पे। सो यू नीड टू प्रिपेयर फॉर अ वर्स्ट केस सिनेरियो। अगर ये भी मुझसे पूछ लिया जाए, आई नीड टू नो दिस। स्पेशली आपको जो रिज्यूमे में जो भी आप हर एक चीज मेंशन करो, ठीक है, जो प्रोजेक्ट में जो आपने टर्म्स यूज किए हैं, यू नीड टू नो एवरीथिंग इन एंड आउट फॉर दैट। ठीक है, इंटर्नशिप सेम गोस विद इंटर्नशिप, जो आपने स्किल्स मेंशन करी है, अगर उससे आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो यू नीड टू नो इन अ कि हाँ ठीक है, ये होता है, ये होता है, ये यहाँ से होता है। तो या आपका रिज्यूमे आपको रटा होना चाहिए। एंड फॉर मी मतलब दे वर लाइक मेरा इंटरव्यू अप्रॉक्स 30 मिनट्स टू, आई डोंट नो द एग्जैक्ट टाइम, बट हाँ 30 मिनट्स टू 40 मिनट्स चला था अप्रॉक्स। और दैट दे आस्क्ड मी लाइक 20 to 25 मिनट्स मुझे टेक्निकल के लिए दिए गए थे, एंड लास्ट के 10 to 15 मिनट्स दे आस्क्ड मी एचआर क्वेश्चंस। सो या फॉर एचआर क्वेश्चंस यू need to be like very clear कि आपको रिलाइमेंट करनी है, because they don't support for a like अगर आपको एमटेक परस्यू करना है फिर एमबीए परस्यू करना है, तो यू नीड टू बी लाइक हाँ कि दिस इज माय फर्म रीजन कि आप वहाँ पे बिल्कुल भी बफर नहीं कर रहे हो, वहाँ पे भी आप बिल्कुल ऐसे फ्रीज नहीं हो जा रहे हो। सो या यू नीड टू बी कॉन्फिडेंट। अगर आपको उस टाइम पे आंसर भी नहीं आ रहा है तो शो योर कॉन्फिडेंस से समथिंग रिलेटेबल, बट शो योर कॉन्फिडेंस। वहाँ पे आपको ये नहीं होना है कि ओ मतलब सोच के लग रहे हो, एकदम फ्रीज ही हो रहे हो। सो या तो कॉन्फिडेंस प्ले आर वेरी इंपॉर्टेंट। So you need to listen very carefully. You can see कि this is ऑफ कैंपस प्लेसमेंट्स, और ऑफ कैंपस में तो हमें पता भी नहीं होता कि हम किसके साथ टैकल करने वाले होते हैं। ऑल राइट, इफ यू इट्स ऑन कैंपस देन यू हैव आइडिया अबाउट योर मीन्स क्लासमेट्स की, उनके साथ ही आपको मतलब इंटरव्यू देना है, तो हाउ द लेवल ऑफ देम यू नो क्लियरली। बट अगर ऑफ कैंपस में जा रहे हैं तो प्लीज प्रिपेयर योर सेल्फ एंड बहुत ही अच्छे से एक एक पॉइंट को हमने इस वीडियो में मतलब रिशिका ने बहुत अच्छे से बताया, तो प्लीज लिसन केयरफुली। सो नाउ रिशिका, आई वांट टू नो कि ऑब्वियसली इट्स ऑफ कैंपस, तो आप क्या सजेस्ट करना चाहोगे लाइक जो जूनियर्स मतलब इंटरव्यू तो एक मतलब जैसे कॉलेज में होता है तो कॉलेज में इंटरव्यू होता है, लेकिन हमें कॉलेज से कहीं लाइक गुड़गांव आप गई थी मीन्स कानपुर से गुड़गांव अपना इंटरव्यू देने, तो उस समय हाउ यू आर हैक्टिक लाइक नर्वसनेस, मतलब इसको कैसे आपने कम डाउन किया कि यस आई एम गोइंग एंड आई विल गिव माय बेस्ट। I would like to suggest my junior, do not get panic। अगर आपका प्लेसमेंट भी इनिशियली नहीं हो रहा है, कि इनिशियली सीएसआईटी में हम देखते हैं अगस्त से ही पीपल आर गेटिंग ऑफर्स, बट ये होता है कोर ब्रांचेस में कंपनी थोड़ा डिले आती है। तो डोंट गेट पैनिक कि हमारे जो फ्रेंड्स हैं उनके 15 लाख 17 लाख, सीएसआईटी टू हैव सच थिंग का मार्केट है, बट हमारे यहाँ ग्रेजुअली ग्रोथ होती है। सो हमारा मार्केट उनका मार्केट सेम नहीं है, ठीक है। सो डोंट गेट पैनिक कि ओके मेरे फ्रेंड्स जो सीएसआईटी में हैं उनका इतना अच्छा अच्छा पैकेज लग रहा है, हमारे यहाँ कंपैरेटिवली इतनी कंपनीज आ नहीं रही हैं। ग्रेजुअली कंपनीज आएंगी, बट यू नीड टू बी पेशेंस, और आपको अपनी ऐसे प्रेपरेशन स्टार्टिंग से अच्छी रखनी चाहिए, रखनी होगी कि कभी भी कंपनी आए यू आर रेडी फॉर द इंटरव्यू कि हाँ ठीक है आई विल क्रैक इट। एंड द थिंग इज कि किसी भी चीज पे आप इतना डिपेंडेंट मत होना कि अगर कोई पर्टिकुलर कंपनी आई आपने उसमें 100 don't have like 100% expectations from that, क्योंकि जो इंटरव्यू क्वेश्चन होता है
प्रॉपर जितने अभी सब होता है उसमें थोड़ा सा लक फैक्टर होता है। आप बहुत सारे लोगों को देखोगे जो शायद आपकी नजर में इतना डिजर्विंग नहीं होंगे, बट दे आर गेटिंग प्लेस्ड, एंड आपने साइमल्टेनियसली शायद उनसे ज्यादा मेहनत करी होगी उस टाइम पे, बट कहीं ना कहीं अगर उस टाइम पे ये लग रहा है कि ओके मेरा इसकी जगह सिलेक्शन होना चाहिए था, समथिंग गुड इज वेटिंग फॉर यू, तो ये सारे थॉट्स मेरे भी दिमाग जनरली आते हैं, लोगों के लाइक सजेस्ट वाइज डू जस्ट डोंट पैनिक, एंड द थिंग इज कि आप ट्राई करो, आपका अच्छा प्लेसमेंट हो जाएगा, क्योंकि पैनिक करने से, एंजाइटी लेने से कुछ नहीं होगा। एंड लाइक कॉलेज लाइफ अच्छे से एंजॉय करो, एंड प्लेसमेंट टाइम पे सीरियस हो जाओ, दैट्स द थिंग। Exactly, exactly. Yeah, that's all thing you have to do from your life of means your journey of student life. You not need to panic as Risika say, and you have to just means जो भी प्रोसेस है उस प्रोसेस को फॉलो करते जाओ, एंड इफ यू कॉन्फिडेंस देन ऑब्वियसली वन डे यू विल गेट गुड प्लेसमेंट। नाउ आई कम टू एडवाइस फॉर जूनियर्स। सो एट लास्ट मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, लाइक जो भी स्टूडेंट थर्ड ईयर और फाइनल ईयर में होते हैं, दे आर मच मोर हेक्टिक फॉर देयर करियर, दे आर टोटली कंफ्यूज, उन्हें गेट करना चाहिए, उन्हें प्लेसमेंट्स का प्रिपरेशन करना चाहिए, उन्हें क्या करना चाहिए। तो नाउ यू आर इन फाइनल ईयर एंड यू गॉट प्लेस्ड, एज यू से स्टार्टिंग की नाउ यू आर रिलैक्स, जो स्टूडेंट हु आर नॉट गेट प्लेस्ड, तो उनके लिए आप क्या एडवाइस देना चाहोगी? या मतलब सी दिस इज नॉट अ एंड, लाइक एवरीथिंग, लाइक हमारे आगे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, वी कैन डू सो मेनी थिंग्स from now. Okay, so it is not like if someone is not getting praised by the end of the session, so it's not like कि अब कुछ बचा ही नहीं है, you can like prepare for a government exams, you can prepare for a MBA, you can go for a AMTech, there are endless options out there. And you also ask me one more thing कि जो juniors confuse होते हैं कि उन्हें GATE pursue करना है या फिर उन्हें placements नहीं है। See, if like you want to go for a higher studies, and for higher studies you need to spend 2 more years into it, वो आपको बहुत ज्यादा अच्छा आउटकम देता है। सो या इट इज अ पर्सनल चॉइस, इफ यू वांट टू गो फॉर अ हायर स्टडी, गो फॉर अ गेट, इट इज द बेस्ट ऑप्शन। एंड इफ यू वांट टू लाइक कंटिन्यू विथ योर लाइक ओके अब मैंने 4 साल पढ़ लिया, आई नीड टू गेन अ रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस बाय वर्किंग इन द इंडस्ट्री, क्या चल रहा है, इफ यू हैव दैट क्लियरिटी इन योर माइंड, देन गो फॉर अ प्लेसमेंट। सो इट इज नॉट लाइक कि अगर आपने गेट पे प्रिपेयर किया कि आप प्लेसमेंट पे नहीं बैठ सकते। बहुत सारे लोग हैं जो गेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, स्टिल दे आर सिटिंग फॉर अ प्लेसमेंट, क्योंकि कनेक्शंस हो जाता है इंटरव्यू एंड एवरीथिंग का। सो या इट इज कंप्लीटली योर पर्सनल चॉइस, बट व्हाट आई वुड सजेस्ट कि जो भी आपको करना है, हैव क्लैरिटी बाय टिल थर्ड ईयर, फिर आप थर्ड ईयर से उसमें इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि फाइनल ईयर में व्हेन यू आर सी कि लोगों को उसके आउटकम्स मिल रहे हैं, तो आपको भी वो थोड़ा सा होगा कि एवरीवन इज गेटिंग समथिंग और द अदर थिंग, एंड वेयर आई एम स्टैंडिंग राइट नाउ, तो वो एक होता है ना एंजाइटी फैक्टर, दैट इज वेरी ओके, दैट इज वेरी बैड। सो यू नीड टू वेरी क्लियर कि हाँ ठीक है, अब मुझे ये प्रोसीड करना है, दिस इज माय राइट टाइम, आई नीड टू स्टार्ट एट दिस टाइम। सो या this is from my end, and I would like to say Neeraj, you are doing a good job, क्योंकि जब मेरा Reliance का इंटरव्यू था, I suggested for a tips and something like that in YouTube. I don't have any such video at that time, so yeah, if this video will help my juniors, so yeah, it would like means a lot, and your work is very good, you are helping so many juniors, like एक टाइम पे मैं भी इस जगह पे थी कि मैं ऐसा डर रही थी कि कुछ तो मुझे अपने इस वीडियो में मुझे नहीं मिली, बट अब जो हमारे जूनियर्स होंगे आने वाले टाइम पे, दे विल गेट, एंड इससे बहुत ज्यादा उन्हें हेल्प होगा, दिस इज अ वेरी गुड थिंग। Yeah, exactly. Yeah, obviously, thank you so much, Risika. Obviously, जो भी आपका लाइफ मीन्स ये प्लेसमेंट्स जर्नी का स्ट्रेटेजी रहा, वी कवर एवरीथिंग, एंड ऑब्वियसली एट लास्ट अगर आप इस वीडियो को देख रहे होंगे तो आपको मैं बता दूं कि वी हैव फेस सो मेनी इशू, बट वी डू फॉर दिस जूनियर्स, वी हैव अ नेटवर्क इशू। हम इस वीडियो को बहुत दिन से शूट कर रहे हैं, बट फाइनली हमने इसे शूट किया। या एग्जैक्टली, सो प्लीज अगर वीडियो से आपको थोड़ा भी नॉलेज मिलता है, एंड होपफुली आपको नॉलेज मिलेगा ही, क्योंकि हमने हर एक पॉइंट को कवर किया है, लाइक ऑफ कैंपस में कैसे आपको मतलब अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करना है। तो दिस काइंड ऑफ वीडियो इज रियली हेल्पफुल। सो प्लीज वीडियो से थोड़ा भी इन्फॉर्मेशन मिलता है तो प्लीज लाइक करें, और अपने मीन्स जितने फ्रेंड्स हो सके शेयर करें। सो प्लीज थैंक यू रिसिका। थैंक यू।